तो कैसे हो, सब बढ़िया। चलो साइंस में अब चैप्टर नंबर 13 के बारे में लास्ट टॉपिक है ये हमारा। बाद में ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में बार बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक मोटर से टोटली ओपोज है ये। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस पर डिपेंड करता है, यानी किस पर काम कर रहा है, किस कंडीशन पर वो काम कर रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये बेसिस पर ये काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो बोल देना। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने ये फिगर ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ मैग्नेट दो मैग्नेट रखा गया हुआ है। एक मैग्नेट है वो नॉर्थ है, एक है वो साउथ है। तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक जो भी डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा नॉर्थ टू साउथ। रेडी? तो इसी के बारे में यहाँ पर हम पूरी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। और आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो ये इजी है। ये टोटली ऑपोजिट इलेक्ट्रिक मोटर के। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता था, यू गिव द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इज कन्वर्ट टू द मैकेनिकल एनर्जी, बट इन द जनरेटर यू गिव द एनर्जी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड इट इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। In the show in the figure, here show in the figure, construction of an AC generator. It is a consist to the rectangular coil. It is a consist to rectangular coil ABCD placed between the two poles. Here the rectangular coil ABCD placed in the between the two magnetic poles north and south. Ready? Here to show in the figure, the rectangular circuit coil are placed between the two poles north and south. Two ends the coil of the coil are connected to the two metal ring. Here these coils are connected to the two metal rings R1 and R2. मैं ये बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में आपको समझा रहा हूँ। Here the coil of ABCD are placed between the two pole north and south, and then next here this circuit, this coil are connected with the two metallic point R1 and R2. The two conducting stationary brushes B1 and B2 are kept pressed separately on the ring R1 and R2. Here the B1, here the B2. It is a brush. It is a brush. B1 and B2 is a brush. Ready? The two rings R1 and R2 internally attached to an axle. Yani here R1 and R2 are internally attached with this axle, and the axle may be mechanical rotate from the outside. Here the axle may be mechanical rotate from the outside to rotate the coil inside the magnetic field and rotate the magnetic field. Understood? कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन एक और बार रिपीट कर देता हूँ, फिर भी देख लेना। हियर फर्स्ट शो इन द फिगर ABCD coil are placed between the two poles north and south, and then second thing, here coil ABCD are connect with the two metallic point R1 and R2. Third point, here R1 and R2 also connect with the brush B1 and B2, and then here R1 and R2 are initially attached with the axle. The axle may be mechanically rotate from outside, यानी कि बाहर से हमें mechanically the axle may be rotated, mechanically rotated फ्रॉम आउटसाइड, यानी आउटसाइड से हमें क्या करना है, मैकेनिकली घुमाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. Outer ends the two brushes are connected to the galvanometer. Here the galvanometer are present, and the outside the galvanometer present. That reason in the outer side and the two brushes B1 and B2 are connected with the galvanometer, because the galvanometer is a measurement of the electric current
to show the flow of the current and the given the external circuit. Understood? Ready? ये construction खत्म हो गया. Working. Suppose the axle attached with to the two rings rotate such that AB moves up and CD moves down. Here the magnetic field, you know that the magnetic field is north pole to south pole, and the first the attached suppose the axle with attached to the two rings rotate. यानी यहाँ पर अब जो एक्सल दी गई हुई है हमें वो क्या कर रहे हैं हम लोग घुमा रहे हैं. अब इसको घुमाना है, किस तरफ घूमेगा? ए बी है वो अप जाएगा और सी डी है वो डाउन जाएगा. जैसे ही ये कंडीशन होगी अप डाउन कंडीशन, यानी कि आधा रोटेट कैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. आधा रोटेट खत्म हो जाएगा. आधा रोटेट रेडी, यानी कि ए बी जो हाफ सर्कल के बाद अप आएगा और सी डी जो हाफ सर्कल के बाद डाउन आएगा. रेडी. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द परमानेंट मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट रखा गया हुआ है. एन और एस जो यहाँ पर रखे हुए है वो परमानेंट मैग्नेट है, यानी उसको चेंज नहीं कर सकते. दैट रीजन उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएगा. देन द कॉइल ऑफ ए बी सी डी रोटेट क्लॉकवाइज, यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट रखा गया हुआ है, यानी कि ये जो कॉइल है वो रोटेट करेगी क्लॉकवाइज. इन द अरेंजमेंट सो इन द फिगर बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. यहाँ पर हमें क्या करना है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिक करंट की भी डायरेक्शन मिल जाएगी. वी फाइंड द इंड्यूस्ड करंट आर set up these arms along the direction of AB and CD. Thus means that the current in the external circuit flows from the bus B2 to B1. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो आप देख सकते हो कि करंट कैसे फ्लो होगा? B2 to B1 होगा. मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. किस तरीके से हम जाएंगे? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में राइट हैंड रूल, ये मेरा राइट हैंड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या यहाँ पर है? इस डायरेक्शन में है. तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में रहा तो करंट कैसे आएगा? नीचे से आएगा. और ये इस तरह से हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था. इस तरह से हमने क्या पढ़ा था? राइट हैंड रूल पढ़ा था. रेडी. इस तरह से तो जो मेरा इस तरह से हमने पढ़ा था ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस तरह से पढ़ा था तो आप देख सकते हो कि ये पहली उंगली है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड. ये उंगली इलेक्ट्रिक करंट और ये है मोशन ऑफ द कंडक्टर. तो सेम कंडीशन देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाओ तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में और ये एक्सेल है वो घूम रही है. रेडी. तो उसी कंडीशन बन जाएंगे. बाय द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जितना ये नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगा इन द लूप द लार्ज इंडक्टेंस इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन. जितना ये इंक्रीज होगा, जितना ये बाहर से मैकेनिकली हम इसको रोटेट करेंगे, उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता हुआ हमें दिखेगा. यानी कि जितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उतना ज़्यादा हमें इसको मैकेनिकली रोटेट करना पड़ेगा. आप हाथ से भी कर सकते हो, कोई मशीन से भी कर सकते हो. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. और यहाँ पर इन दिस केस में इलेक्ट्रॉन, इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग? outer ends of the two brushes are of the current in this external circuit. This means the current is external circuit from bus B2 to B1. If the coil is made of the large number of turns, यानी कि यहाँ पर coil जो large number of turns से बनी हुई है, the current will be make a better than better and greater than greater. After half rotation, in this case after half rotation CD comes. हाफ रोटेशन में क्या आएगा? सी डी यहाँ आ जाएगा और अभी यहाँ आ जाएगा. और फुल रोटेशन के बाद आफ्टर द हाफ रोटेशन आर सी डी स्टार्ट मूविंग अप एंड ए बी मूविंग डाउन. अब क्या होगा? ए बी जैसे हाफ रोटेशन के बाद सी डी है वो अप जाने की कोशिश करेगा और ए बी है वो डाउन जाने की कोशिश करेगा. रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंडक्टेंस करंट इज बोथ द आर्म्स चेंज. यानी कि अगर ये आर्म चेंज करोगे तब डायरेक्शन की भी चेंज हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. रेडी.
This means the current in the external circuit now flow from the B1 to B2. Ready? Thus, after every half rotation, the direction of the current in the respectively arm change such a current. यानी कि after every half rotation, the direction of the current in the respectively arms changes. यानी कि अगर हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा. रेडी? अगर आर्म्स चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी. विच चेंज डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये इक्वल इंटरवल टर्म जितने में ये यहाँ जाएगी उतने ही टाइम में ये भी यहाँ से आएगी. टाइम इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिव करंट. दैट रीजन इज कॉल्ड टू अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि ये दोनों साइड फ्लो हो रही है, यहाँ से यहाँ पर भी जा रही है, यहाँ पर ऐसी. दैट रीजन इज कॉल्ड टू एसी जनरेटर, अदरवाइज इज कॉल्ड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर. एंड एसी के अंदर होता है अल्टरनेटिव करंट. दैट रीजन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव भी जाएगा और नेगेटिव टू पॉजिटिव भी जाएगा. ये कंडीशन रहेगी. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर नंबर 13 का ये लास्ट टॉपिक था, इसलिए मैंने ये शॉर्ट लेक्चर बना रहा हूँ. बाद में हम चैप्टर नया शुरू करने जा रहे हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आई थिंक आप वो भी समझ पाओगे. ओके, चलो आज मैं यहाँ तक रख रहा हूँ. फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना. ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर.